Good morning students, welcome to our next part of class 7th English. Today we will continue with the question answers of our poem The Shed. Now you all remember that in our last part we read the poem The Shed, which is the part of our class 7th English chapter 3 Gopal and the Hilsa Fish. Okay, so this poem is written by Frank Flynn. He is the poet who wrote this poem. Alright, so I told you a few things about the poet. He was from Australia and he was a doctor, he was an author and also a missionary priest. Missionary priest, I told you, he was a priest in the church. जो क्रिश्चियंस के जो पादरी होते हैं चर्च में जो प्रेयर्स कंडक्ट करते हैं, they are called missionary priests. ओके, सो ही वॉज ऑथर ऑल्सो, वो एक लेखक भी थे क्योंकि उन्होंने ये कविताएं लिखी थी, और वो एक डॉक्टर भी थे. ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अ डॉक्टर, और वो जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वहाँ पे काम करते थे. ही यूज्ड टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अबोरिजिनल पीपल देयर. ठीक है, तो इन्होंने ये पोएम लिखी थी फ्रैंक फ्लिन ने, एंड ही वॉज बॉर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया एंड ही डाइड इन 2000. In the year 2000. So we also read about what kind of the poem this was. ये कैसा पोएम था बेटा? ये एक नरेटिव पोएम थी. नरेटिव पोएम क्या होती है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. नरेटिव पोएम मीन्स in this poem the poet narrates a story. ठीक है, वो नरेट कर रहा है, वो एक कहानी बता रहा है. It is a long poem. It's very long. It does not have any rhyme scheme. उसमें कोई rhyming scheme नहीं होती बिल्कुल भी. Which I told you it can be A B B or A B A B. ठीक है, rhyming scheme नहीं है. Long poem है and it has a beginning, center part and then the end, or you can say the conclusion part. ठीक है, ये एक बड़ी पोएम होती है और एक ही इंसान इसको नरेट करता है. मोस्टली one person only narrates such kind of poems. So you remember what we read in the poem. क्या पढ़ा था हमने बेटा द शेड में? सबसे पहले तो we have taken the difference between shade and the shed. शेड और शेड में हमने डिफरेंस पढ़ा था. शेड मीन्स SHADE, shade means छाया, alright, and SHED, shed means a small room where we keep or store some things, or we keep animals, or we store some grains or tools or n number of things. ठीक है, shed एक छोटी सी जगह होती है, एक छोटा सा कमरा होता है which is covered and that is used to keep animals, either animals और some tools. जैसे कि गैरेज जो होता है, गैरेज किसी पर्सन के पास गैरेज होता है ना, मैकेनिक के पास, तो वो गैरेज भी एक टाइप का शेड ही है बिकॉज दैट गैरेज इज यूज टू कीप द टूल्स. ठीक है, देन वी कैन कीप ग्रेन्स ऑल्सो. हम हमारा अनाज भी उसमें रख सकते हैं, हम उसमें कैटल भी रख सकते हैं, हॉर्सेज ऑल्सो, काउज ऑल्सो. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ शेड. ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन द टू इज क्लियर. Don't ever get confused between the two words, shade and the shed. Shade means trees shade, you can say, पेड़ की छाया. ठीक है, और a shade of a tent, टेंट लगाते हैं उसकी छाया. You can say any of the shades. ठीक है बेटा, अब ये हमने डिफरेंस पढ़ा था शेड और शेड के बारे में. So this was the difference we read in last part about the shade and the shed. Then we started with the poem. So let me summarize the poem for you so that it will be easy for you to do the question answers very well. So let me remind you what we read in our last part, that the poet is a small boy and he is saying that there is a shed near his house which is under his garden. ठीक है, और उसके गार्डन के किनारे पर वो एक शेड है उसके घर के पास. ठीक है बेटा, now he is describing the shed. How is he describing the shed? He is saying that the door of the shed is having a spider's web.
जो डोर है, जो दरवाज़ा है उस शेड का, उसके ऊपर क्या है? स्पाइडर का जाल है, ठीक है, एक जाल है जो स्पाइडर ने बनाया है. देन he tells there is also some hinge which are holding the doors. जो उसकी hinges हैं वो rusted हैं, वो जंग लगे हुए हैं, पानी और हवा की वजह से कांटेक्ट में आके वो जंग लग चुका है उनको, और वो एक creaking sound प्रोड्यूस करते हैं. The hinges produce creaking sound when they move, ठीक है, and the poet can listen the noise easily while he is lying on his bed. पोएट कह रहा है कि मैं ये आवाज़ आसानी से, जो क्रीकिंग साउंड है, वो चू 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 जो गेट की आवाज़ आती है ना बेटा, वो मैं आसानी से सुन सकता हूँ जब मैं अपने बिस्तर पे सो रहा होता हूँ तो, ठीक है. बट देन ही सेज कि मैं किसी ना किसी दिन उसमें ज़रूर जाऊँगा. आई विल हैव अ पीप इन दैट शेड. मैं उसमें झाँकूँगा ज़रूर, ठीक है. Then next what he does, he explains more about the shed. क्या explain करता है? He says there is a window, okay, it's very dusty, बहुत ही मिट्टी से, धूल से भरी हुई एक खिड़की है उस शेड में, उस गेट के पास, उस डोर के पास, और उस विंडो में क्या है बेटा? क्रैक्ड विंडो पेन्स हैं, टूटे हुए शीशे हैं, टूटे हुए कांच हैं जो उस खिड़की में लगे हुए थे. सो दे आर क्रैक्ड विंडो पेन्स. ही इज सेइंग ऑल दीज थिंग्स एंड देन ही इज सेइंग दैट स्टिल ही विल हैव अ peep in that shed, and every time he passes through the shed he feels as if someone is staring at him. हर बार जब वो उस शेड के पास से गुजरता है, हर बार उसको ऐसे लगता है जैसे कि उसको कोई देख रहा हो, अंदर से उसको कोई छुप के घूर रहा हो, ठीक है, ऐसा उस पोएट को लगता है बेटा, ठीक. फिर भी वो कह रहा है बट स्टिल आई विल हैव अ पीप इन दैट शेड. कभी ना कभी मैं उसमें जाके ज़रूर देखूंगा. नेक्स्ट ही सेज कि उसके भाई ने बोला है देयर इज़ अ गोस्ट. नाउ हिज एल्डर ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट. वेयर? इन द शेड. एंड वेयर इज़ दैट गोस्ट रिजाइडिंग? द गोस्ट इज रिजाइडिंग और लिविंग अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड, ठीक है. वो भूत कहाँ है? जो उसके भाई ने बताया, उस शेड में जो फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग है, जो कि मॉइस्चर से और एयर वाटर के कांटेक्ट में आके बिल्कुल सड़ चुकी है, उसके नीचे वो भूत रहता है. एंड देन he warns his younger brother, or the elder brother warns the poet that if you ever step into the shed, अगर तुम कभी भी उस शेड में गए या एक कदम भी रखा, then what will happen? The ghost will jump out and chop off your head. तो जो भूत है वो निकल के आएगा तुरंत, जंप करते हुए, और तुम्हारा सर काट देगा. ओके, ही विल जस्ट चॉप ऑफ योर हेड. चॉपिंग मीन्स टू कट इनटू पीसेस, ठीक है. नाउ दिस इज हिज एल्डर ब्रदर स्टेटमेंट, बट स्टिल दिस बॉय द पोएट सेज दैट आई विल हैव अ लुक इनटू दैट शेड वन डे. फिर भी मैं एक न एक दिन जाऊंगा जरूर. Now can you think why his brother has said all these things about the shed? आप अपने बड़े भाई या बहन, आपको भी ऐसा कुछ कहते होंगे कि उस मेरे रूम में मत आओ या उस जगह पे मत जाना, ऐसे मत करना. Do they ever say all these things to you? Yes, because at that place they are having their own secrets which they don't want to reveal to anyone. क्योंकि उन जगहों पे उनके कुछ सीक्रेट्स होते हैं या उनकी कुछ ऐसी बातें वो रखना चाहते हैं जो वो हर किसी से शेयर नहीं करना चाहते. ऑलराइट, सो देन द पोएट सेज इन द लास्ट पैरा दैट ही नोज, ही हिमसेल्फ नोज दैट देयर इज नो गोस्ट इन द शेड. वो कह रहा है कि मुझे मालूम है कोई गोस्ट नहीं है शेड में, एक भूत भी नहीं है, ठीक है. ही नोज दिस वेरी वेल, बट स्टिल my brother is saying all this because he wants to keep the shed for his den. वो उस शेड को क्या करना चाहता है? अपनी सीक्रेट हाइडिंग प्लेस बना के रखना चाहता है. इसीलिए वो मुझे कह रहा है कि तुम उधर मत जाना, वहाँ पे एक भूत रहता है. ओके, द पोएट सेज कोई भूत वूत नहीं है, पर मैं सब समझता हूँ कि मेरा बड़ा भाई मुझे क्यों रोक रहा है वहाँ जाने से, क्योंकि वो उस शेड को अपनी सीक्रेट प्लेस बना के रखना चाहता है, जहाँ वो जो चाहे करे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. ऑलराइट,
Then he says he also knows that there is no spider on the door, no spider's web on the door. The poet says कि मुझे मालूम है वहाँ पे कोई मकड़ी का जाला नहीं है, ना ही वो मकड़ी है, वो अब जा चुकी है. The spider has gone now. There is no more spider on the door of the shed. Then he says that there is no ghost and there is nothing which he is feared of. Now he says, I will go to that shed one day, but not just yet. आज नहीं, पर किसी न किसी दिन जल्दी मैं उस शेड में जाऊंगा ज़रूर. All right. So this was what we read in our last part. This is the whole summary of the poem. Hope you all understood very well. Now we will jump to the question answers part. So come along, beta. The first one is answer the following questions. ठीक है? Who is the speaker in the poem? बताइए, ये poem किसने लिखी है? Who is the narrator in the poem? Obviously, poet has written and he is a small boy. ये एक छोटे बच्चे ने लिखी है, ठीक है? When he was very young and he is narrating the whole story about the shed. The speaker in the poem seems to be a little boy. एक छोटा लड़का है, ठीक है? He is not a grown up, he is a small boy who talks about a shed. Now he is narrating about the shed, each and everything about the shed, which is at the bottom of his garden. जो उसके गार्डन के किनारे पर है, उसके घर के पास में ही वो शेड है. और वो कहाँ है बेटा? उसके गार्डन के एक कोने में जाके, ठीक है? थोड़ा सा उसके घर से डिस्टेंस है उसका, बट इट इज इन हिज ओन गार्डन. ऑल राइट. सो द स्पीकर इज अ यंग बॉय. सेकेंड, इज शी और ही afraid or curious or both? जो पोएट है ये afraid है क्या? Is he afraid? Afraid means भयभीत, डरा हुआ. डरा हुआ है क्या? या curious है, या वो उत्सुक है कुछ जानने के लिए. He wants to know something. What exactly is in the shed? है क्या शेड में, वो जानना चाह रहा है. So tell me, या तो वो दोनों ही फीलिंग्स रख रहा है या एक रख रहा है, कोई सी भी बताइए. नाउ यू टेल मी, इज ही अफ्रेड? वो डर रहा है जाने से शेड में, या वो क्यूरियस है, या वो जानना चाह रहा है, या उसके अंदर दोनों फीलिंग्स हैं. ठीक है? सो नाउ वी विल डिस्कस दिस. ही इज अफ्रेड ऑल्सो, लिटिल अफ्रेड, बिकॉज ही इज अ लिटिल बॉय. वो एक छोटा लड़का है तो थोड़ा बहुत डर तो बेटा उसको लगेगा ही. इट्स बट नेचुरल. ओके, बट देन ही गैदर्स करेज. वो फिर क्या करता है? अपना साहस बटोरता है और हिम्मत करता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ पे जाऊँगा और पता लगाऊंगा कि है क्या एग्जैक्टली. तो वो क्यूरियस भी है और वो अफ्रेड भी है. ऑल राइट, सो लेट्स रीड. ही और शी इज बोथ अफ्रेड एंड क्यूरियस. वो क्या है बेटा? डर भी रहा है और क्यूरियस भी है. ठीक है? अफ्रेड मीन्स ही इज अफ्रेड ऑफ, वो डरा हुआ है, एंड ही इज क्यूरियस ऑल्सो, वो उत्सुक भी है जानने के लिए. ठीक है? ही वॉन्ट्स टू नो एग्जैक्टली वॉट इज इन द शेड. Whenever he passes by the window of the shed, he feels that somebody is staring at him. Why is he afraid? He is afraid because whenever he passes, every time when he passes from the shed, he feels as if somebody is staring at him from the broken window of the shed. ठीक है? हर बार, जितनी भी बार वो उस शेड के सामने से गुजरता है, उसको ऐसे लगता है कि उसको कोई अंदर से घूर रहा है. उसको दिखता नहीं है कोई, बट ही हैज़ अ फीलिंग. उसको एक फीलिंग होती है कि उसको कोई ना कोई उस शेड की जो टूटी हुई खिड़की है, विंडो है, उसमें से उसको कोई झांक रहा है, देख रहा है. दिस सजेस्ट्स दैट ही इज अफ्रेड टू गो इनसाइड. नाउ here in this line you can see that he is a bit afraid to go inside the shed, क्योंकि उसको लग रहा है कहीं अंदर से कोई मेरे को पकड़ ना ले, कोई अंदर हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं तो अभी छोटा ही हूँ. so all these kinds of feelings come in his mind. ठीक है? तो इनसे हमें पता लगता है कि वो क्या है बेटा?
afraid. ओके वो डर रहा है उस शेड में जाने से. तो फर्स्ट फीलिंग हमारी प्रूव हो गई कि उसको अफ्रेड है, ही इज अफ्रेड ऑफ. However, after describing each part of the shed with its strange sounds and other descriptions, he says that he would go inside the shed one day. Now we all have read in the poem that in the beginning he explains or describes his shed and what type of noises it is creating. The creaking noise, or the window panes are broken, there is a spider's web, or the rotten floorboards, all sorts of things is being explained by the poet. ठीक है, ये सारी चीज़ें वो sounds और जो shed का description है वो सारा वो poet कर रहा है. पर उसके बाद भी वो क्या बोल रहा है बेटा? He is saying that he would go inside the shed one day. वो एक दिन ज़रूर उस shed में जाएगा ही जाएगा और देखेगा, झांकेगा उसमें. ठीक है, सारे डिस्क्रिप्शन के बाद भी वो ये चीज बोल रहा है. दिस शोज हिज क्यूरियोसिटी. ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या बताना था कि वो अफ्रेड है कि नहीं. तो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट ही वॉज अफ्रेड. नाउ द सेकेंड थिंग विच वी वॉन्टेड टू टेल, वॉज ही क्यूरियस और नॉट. तो हियर वी कैन से ही वॉज क्यूरियस एज वेल. ठीक है, वो उत्सुक था कुछ जानने के लिए. ठीक है, कि शेड में है क्या. बिकॉज ही इज सेइंग दैट ही विल गो वन डे, है ना. सारी चीज डिस्क्राइब करने के बाद वो कह रहा है कि वो जरूर एक बार जाएगा. इट मीन्स ही इज क्यूरियस टू नो व्हाट इज इन द शेड. उस शेड के अंदर ऐसा कुछ छुपा है क्या जिसका उसको डर है, या उसमें क्या है उसको पता लगाने के लिए वो जरूर उसमें जाएगा. इट मीन्स ही इज क्यूरियस. He wants to know if all the things his brother had told him are true or not, and whether there is any ghost inside the shed or not. Now the poet says that he is curious because he wants to know that all the things or all the statements of his brother are true or not. The poet wants to know what is exactly in the shed. पोएट ये जानना चाह रहा है कि जिन जिन बातों से उसके भाई ने उसको डराया था कि उस शेड में एक गोस्ट रहता है और तुम्हारे जाते ही वो तुम्हें चॉप कर देगा, तुम्हारा सिर, तो ये बात सच है या नहीं. और जो रॉटन फ्लोर बोर्ड है उसके नीचे भूत रहता है या नहीं. ही वॉन्ट्स टू नो द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस. ठीक है, वो अपने आप इनका पता लगाना चाहता है. जो बातें उसके भाई ने बोली हैं वो सच है या नहीं, इसका वो पता लगाना चाहता है. ठीक है, और इस बात का भी पता लगाना चाहता है कि क्या सच में उस शेड के अंदर कोई भूत है. इज देयर रियली अ गोस्ट इन द शेड अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड्स. ठीक है, दैट इज वाई ही इज अ लिटिल अफ्रेड बट अ लॉट मोर क्यूरियस. So hence this is the end of the answer, that he is afraid also, but more than afraid, more than what he is afraid of, he is curious. Curious ज़्यादा है afraid होने से भी ज़्यादा. ठीक है, डर तो रहा है but still he is saying that he will have a peep in that shed one day. ठीक है, but he is curious also, he is afraid also. What is she or he planning to do soon? अब जो पोएट है ये क्या प्लान कर रहा है जल्दी ही कुछ करने का. हमने पोएम में पढ़ा था ना, वो क्या प्लान कर रहा था. वो ये कह रहा था कि मैं जल्द ही इस शेड के अंदर जाके सब चीज़ों का पता लगाऊंगा. ठीक है, सो दिस वॉज वॉट ही वॉज प्लानिंग टू. शी और ही इज प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड सून. So the poet is planning that he will go inside the shed and find out what is inside the shed. ठीक है, वो पता लगाएगा कि शेड में एक्चुअल में है क्या. तो he was planning to go inside the shed. All right, getting everyone सारे answers का explanation. Okay, so come we'll do the next. But not just yet. Do you remember this is the last line of the poem. ये पोएम की सबसे लास्ट लाइन है ना. इसका मतलब क्या है, वी हैव टू एक्सप्लेन हियर. दिस सजेस्ट्स डाउट
डाउट है, फियर है, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है विच इज स्पोकन बाय द पोएट कि बट नॉट जस्ट येट, उसने बोला था ना कि आई विल गो टू द शेड वन डे बट नॉट जस्ट येट, पर अभी नहीं जाऊंगा। तो ये अभी नहीं जाऊंगा क्यों बोला उसने? क्या वो डाउट में था? क्या उसके मन में दुविधा चल रही थी कि जाना है या नहीं जाना? उसको कोई संदेह था? और ही वॉज हैविंग सम फियर, वो डर रहा था, उसको किसी चीज़ का डर था, या हेजिटेशन था, कोई झिझक थी अंदर जाने की, शेड में जाने की, या वो लेजी था इसलिए नहीं जा रहा था, और समथिंग एल्स, या कोई और रीज़न था। ठीक है, ये जो लाइन उसने बोली थी इसके पीछे क्या रीज़न था? क्या ये रीजंस थे या कोई और रीज़न था? चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू। नाउ वी हैव टू चूज अ वर्ड विच इज exactly correct for this thing. Tell others why you choose it. And now we have to tell others with the explanation of the answer why did we choose this word. ठीक है, हमें एक particular word choose करना है जो इनको explain करे कि इस line का क्या मतलब है. Moving to the answer, but not just yet suggests the speaker's hesitation. ठीक है, स्पीकर क्या था बेटा? वो झिझक रहा था, वो क्या कर रहा था? हेजिटेट कर रहा था. ही वॉज हेजिटेटिंग टू गो टू द शेड. ही वॉज सेइंग जाना तो है, मुझे जाऊंगा जरूर, पर अभी नहीं जाऊंगा. वो थोड़ा सा झिझकते हुए कह रहा है. ही इज कॉन्फिडेंट दैट देयर इज नो गोस्ट इन द शेड. उसको इस चीज का तो कॉन्फिडेंस है. ही इज हैविंग कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस अबाउट वन थिंग, दैट देयर इज नो गोस्ट इन द शेड. कि उसको कॉन्फिडेंस किस चीज का है? इस चीज का है कि शेड में कोई भी भूत नहीं है. एंड दैट द स्टोरीज ऑफ गोस्ट दैट हिज ब्रदर्स मेक्स, और जो कहानियां उसके भाई ने बनाई हैं उस शेड में रहने वाले गोस्ट के लिए, ठीक है, दे आर ऑल लाइज. वो सब क्या हैं बेटा? झूठी हैं. दे आर ऑल लाइज. ठीक है. नाउ द पोएट इज अ लिटिल बॉय बट ही इज मैच्योर इनफ टू थिंक दैट देयर इज नो गोस्ट. ठीक है, वो समझदार भी है, मैच्योर भी है, क्योंकि उसको पता है कि जो भाई बात कर रहा है वो मुझे डराने के लिए कर रहा है. एग्जैक्टली ऐसा कुछ है नहीं. देयर इज नोबडी staring or making strange noises. कोई भी उस शेड में ऐसा नहीं है जो मुझे घूर रहा हो या कोई अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहा हो. ओके, द poet says that he know very well that there is nobody in the shed who is staring at me or making weird noises. ठीक है, ऐसा कोई भी प्राणी उस शेड में नहीं है. Also there is no more a spider on the web on the main door. उसको ये भी पता है कि कोई स्पाइडर नहीं है अब. ठीक है, उस डोर के जो मेन डोर है जिसपे उसको पता था पहले कि कोई स्पाइडर का जाला है, नाउ ही इज सेइंग कि ऐसा कोई जाला वहां पे नहीं है. However, there is some fear inside him as he still cannot muster enough courage to set foot inside the shed, even though he listens to the noises coming from the shed every night. ठीक है, now he is saying that he is having a little fear. थोड़ा सा उसके अंदर क्या है? some fear inside him. थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा भय है, थोड़ा सा डर है. as he still cannot muster enough courage to muster means बेटा साहस बटोरना. ओके, टू गैदर करेज. ठीक है, मस्टर मीन्स टू गैदर करेज. ओके, साहस को एकत्र करना या बटोरना. वो चाहता तो है शेड में जाना, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही अभी, वो अपना साहस बटोर नहीं पा रहा. पूरा जो अपना कॉन्फिडेंस है वो पूरा बटोर के वो उसमें जा नहीं पा रहा अभी. तो इस क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज ही इज अ बिट अफ्रेड. थोड़ा सा उसको भय है. ही कुड नॉट मास्टर इनफ करेज. करेज मीन्स साहस. ओके,
to set foot inside the shed. उस shed के अंदर एक कदम भी रखने की अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही, ठीक है. Even though he listens to the noises coming from the shed every night. और वो हर रात उस shed से आती हुई अजीब तरह से आवाज़ों को सुनता है. And has also passed by the shed many times. और shed के सामने से भी वो कई बार गुजरा, पर फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक बार उस shed के अंदर कदम भी रखे, ठीक है. This shows that his curiosity is mixed with a certain amount of fear, and therefore he hesitates to go inside the shed as yet. Now his curiosity, उसकी उत्सुकता ये जानने की कि shed में क्या है, is mixed with certain amount of fear. कुछ भय भी है उसके मन में, थोड़ा सा भय भी है और वो उत्सुक भी है, वो जानना भी चाह रहा है कि एक्चुअल में क्या है shed में, ठीक है. बट दिस इज द रीजन, therefore he hesitates to go. इसीलिए वो हेजिटेट कर रहा है, वो जा नहीं पा रहा, वो उस shed में अपने डर की वजह से, ठीक है. he hesitates to go inside the shed as yet. और इसीलिए वो उस shed में अभी जाने से रुक रहा है या झिझक रहा है. ओके, so this is the answer to this question. Did you all understand it very well? Okay, now let's move on to the next one. Is there a room in your house or a house in your neighborhood or locality where you would rather not go alone and never at night? Is there any room near your house or in your neighborhood where you will never go alone at night? ऐसा कोई आपके घर के पास में कोई ऐसा कमरा है, कोई शेड है, या आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई जगह या कोई एरिया है जहाँ पे आप रात को अकेले नहीं जाना चाहोगे? आई एम आस्किंग दिस टू यू. ऐसी कोई जगह, ऐसा कुछ आपके घर के आसपास में कोई चीज़ है जिसमें आपको रात को अकेले जाने से डर लगता हो? इफ देयर इज सच अ प्लेस, अगर ऐसी कोई जगह है आपके घर के आसपास, एंड अ स्टोरी टू गो विद इट, और उससे कोई जुड़ी हुई कोई कहानी या कोई बात अगर है, लेट अदर्स हियर ऑल अबाउट इट. तो आप क्या करेंगे? आप सबको इस चीज़ के बारे में बताएंगे. नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज you have to write an incident or a sort of story that if you are having such kind of a room or any abundant place near your locality, अगर आपके आसपास में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग या इंसान ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, तो आप उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी बना के और दूसरों को बताएंगे. तो you can either do one thing, write it down in your notebooks, okay, if any of the story is related to it, और आप वहाँ जाने से क्यों डरते हो वो रीज़न आप लिख सकते हो, वो जगह कैसी लगती है उसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, ठीक है, और आप वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहते ये आप बता सकते हो, ठीक है. दिस यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन कम्प्लीटली, एंड आई नो यू ऑल कैन डू इट वेरी वेल. और सबके घर के आसपास कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर होगी जो बहुत ही स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग होगी. ऑलराइट, सो टुडे वी आर डन विद पार्ट second of this poem, The Shed. Now we will discuss our next chapter in our next class. Hope you all enjoyed the session very well. Keep studying. Have a good day, beta.